السلام علیکم. کیا کلیئر ہے جی؟ اب آواز صاف آ رہی. جی جی. اچھا، تو وہ عرض کرنی تھی کہ یہ 98 کی بات ہے. 98 سے 99 کی یہ بات ہے، تقریباً 17-18 سال. تو جب ان شورا والوں نے پکڑا، جا کے حاجی عبدالوہاب صاحب کو بتایا، جس کے متکلم بنے بھائی جمیل صاحب، بھائی شبیر صاحب، بھائی لطیف صاحب، اور جا کے حاجی صاحب کو بتایا کہ یہ شورا نے 4 مہینے کی محنت کر کے یہ ہیں بھائی مسعود زمان صاحب، مولوی ضیاء الحق صاحب اور ڈاکٹر سلیم صاحب اور مولوی عبدالرحمان صاحب، یہ لوگ ہیں جو امریکہ کے لیے اور یہود و نصارہ کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم اس نتیجے پہنچے ہیں. 3 فائلیں انہوں نے اٹھا کے حاجی صاحب کو بتائی، جو انہوں نے معلومات بھیجی تھی وایا انٹرنیٹ کے ذریعے سے، رائبن سے، کیونکہ ان کا ایکسیس تھا وہاں رائبن کے اندر، ٹیلی فون کے ذریعے، اس کا انٹرنیٹ کا کمپیوٹر لگا، اس کے ذریعے سے بھیجتے تھے. تو وہ انہوں نے حاجی صاحب کو بتایا، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا، اور اس کے بعد ملزم شاہد صاحب کو بتایا. تو مفتی صاحب نے تو فرمایا کہ ان کو 1 دن کے لیے بھی نہیں رکھنا رائبن. ملزم شاہد صاحب نے بتایا، فرمایا کہ بھائی جی ان کو بالکل نہیں رکھنا. اس کو پھر حاجی صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ لوگ ایسا کریں، ان کو 1 سال کے بعد ملکوں میں بھیج دیں، اور یہ جو 4-5 آدمی ہیں جس میں مولوی اللہ ہے، ڈاکٹر سلیم ہے، اور یہ جو جس میں یہ بھی تھے یمین صاحب بھی، تو ان کو 4-5 سال کے 1 سال کے بعد بھیجیں، اور جیسے واپس آئیں تو پھر ان کو اپنے گھروں میں بھیجیں. یہ مقیمین تھے رائبن کے. تو وہ جو آپ آزاد کے سامنے آئی ہوگی کہ ایک عالمی شورا بنی. میں انڈیا والوں کی اس وقت بات نہیں کروں گا، کیونکہ میں تو اپنا ذمہ دار ہوں، جو ہم نے اپنے سامنے سارا ہوتا ہوا دیکھا، جو ہمارے سامنے پروف ہیں، ثبوت ہیں، پیپر میں بھی اور زبان کے اور گواہان بھی ہیں بڑوں میں سے. تو اس پہ انہوں نے یہ کیا کہ مجھ سے غلطی ہوگی کہ میں نے جمیل صاحب کو بتا دیا کہ یار مول صاحب یہ ہوا ہے اور یہ پکڑے گئے ہیں. میں آپ کو منع کرتا تھا اس کمرے میں آپ جا کے نہ سوتے، اس میں ایئر کنڈیشن وغیرہ تھا، تو آپ جا کے سو جاتے ہیں. 1 گھنٹہ میں جمیل صاحب کو سمجھاتا رہا، میں مولوی یونس، کہ آپ جو ہے مہربانی کر کے اس کمرے میں نہ سویا کریں، یہ ان کے لیے کام کریں، آپ بھی بدنام ہو جائیں گے. چل نہیں میری نہیں من. پھر جب یہ پکڑے گئے تو پھر میں جمیل صاحب سے کہا یہ پکڑے گئے، اب شورا نے پکڑ لیا باقاعدہ، تو اب مہربانی کر کے اپنے آپ کو انخلا ڈکا لیں. تو انہوں نے فوراً جا کے مسیح زمان جو ان کے ذمہ دار تھے، جو پاکستان کی شورا میں تھے، ان کو جا کے بتایا تو پکڑے گئے، اپنا سنبھالا کرو. میں نے جمیل صاحب سے پوچھا کہ مولوی شاہد صاحب کو، میں نے جمیل صاحب سے پوچھا آپ نے مسیح زمان کو جا کے بتا دیے؟ ان سے کہ نہیں، میں نے وہاں سے کیوں جا کے فیصلہ بات جا کے کیا تھا، ویسے مل کے نہیں بتایا. میں کہا پتہ نہیں آپ کو اتنا سیریس مسئلہ آپ نے ان کو جا کے بتا دیا. خیر مجھے شاہ صاحب کو پتہ لگا تو بہت غصے ہو گئے، کل سے دودھ پیتا بچہ ہے، یہ بچہ ہے، کیوں اس سے جا کے سارا کچھ بتا دیا، کیوں؟ خیر وہ تو بڑوں کی باتیں جو ہوئی. تو پھر جو ہے وہ جا کے صاحب کے پاؤں میں پڑ گئے کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں، 24 سال کے ساتھی ہیں، ہمیں نہ نکالیں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، بہت کچھ لمبے چوڑے. حاجی صاحب بڑے نرم دل حاجی عبدالوہاب صاحب، انہوں نے ان کو کہا کہ سب کو کہا کہ تم لوگ ان کے اوپر نگاہ رکھو اور ان کو نیچے لے کے چل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی منافقین کو پاس رکھتے تو چلو اپنے پاس رکھو، ان کو باہر نہ بھیجو. تو اب وہ جو پکڑے گئے تھے لوگ، وہ جو پکڑے، اب اس کے ثبوت میں آپ کو یہ لوگ کیا کام کرتے تھے؟ کیا کام کرتے ہیں؟ ہاں یہ کرتے تھے کہ جتنی 2 کام کیے انہوں نے. ایک تو یہ کیا کہ پیسوں کے استعمال کر کے کچھ علماء کو مدرسے والوں کو ساتھ ملایا. پیسوں کا استعمال کر کے مدرسے والے علماء، جو رائبن کا مدرسہ ہے اس کے علماء کو ساتھ ملایا. ہاں. ایک دوسرا، جو رائبن میں معلومات پوری دنیا سے خطوط آتے تھے وہ سارے بھیجے، اور ساری ملکوں میں جو جماعتیں جاتی تھیں، یہ سارے پروف آپ کے سامنے آ جائیں گے، آپ کو میں آستہ آستہ کر کے میل کرتا جاؤں گا. تو جو جماعتیں باہر ملکوں میں بھیجتے تھے، وہاں ان کو کہتے تھے سارے حالات لے کے اور پرفارما لے کے، اور ایک آدمی کہتا ہے کہ ایک اس کی ڈیٹیل لے کے، اور وہ ساری ڈیٹیل بائی انٹرنیٹ کے ذریعے وہ جو امریکہ کی وہ جو یونیورسٹی ہے ادھر بھیج دیتے تھے. تو تقریباً 50,000 پیپر گئے کتنے 6-7 سال کے اندر. اچھا، یہ دوسری بات سمجھ میں آئی.
और पहली बात समझ में नहीं आई कि रावण के बड़े के असाध्या को अपने साथ किया, उसका मतलब क्या? उसका मकसद ये हुआ कि मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसे साथी थे रावण के जो हाजी साहब की जगह पे अमीर बनना चाहते थे। हाँ ठीक है जी, क्योंकि हाजी साहब को जिम्मेदार पाकिस्तान का बनाया था, उससे पहले उनके वालिद साहब जिम्मेदार थे। जब मौजूद ने उनको हमारे से हटा के हाजी अब्दुल वहाब साहब को बनाया तो उस पे ऊपर वो गिर गए कि नहीं ये हमारा हक है और हमारे वालिद साहब को क्यों हटाया, और फिर ये भी कहना शुरू किया। वो बात बीमार पड़ गए तो मौलवी फारूक साहब जो मक्के वाले हैं उनको भी कहा कि भाई मेरे वालिद साहब के कातिल तो हाजी अब्दुल वहाब साहब हैं, क्योंकि उनको मौजूद ने अमीर बना दिया, हमारे वालिद साहब को हटा दिया, इस दुख की वजह से वो फौत हो गए। तो उसके बाद रोको के मदरसे के जिम्मेदार थे, असल तो मौलाना जमशेद साहब थे और मौलाना जुमान साहब साहब थे, लेकिन अंदर खाना उन्होंने अपने इनकी इस चाहत को इस्तेमाल करते हुए इनको आगे ले आए। यानी कितना 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 परवरिश की यहाँ से शुरू की ना, क्योंकि उनकी चाहत से अमीर बनूं और ऐसा को नीचे दिखाऊं। ठीक है, और हाँ मैं आप सारे इन चीजों के मोहतरम आपके पास सबूत आएंगे, आपको लिखे हुए मिलेंगे, ये नहीं है। और इंशाल्लाह आप कहेंगे तो पाकिस्तान से भी काल हो गया। मुसीबत ये है कायदा इस वक्त कैद है, नहीं तो कुछ नज़म ऐसा बनाया जाता कि आपको उन तक अक्सर मिल जाती कि हाँ जी ये बातें जो भी ये बता रहे हैं ये सही है या नहीं है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की सारी सूरत कहेगी कि ये बातें सही है जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये जब पकड़े गए और इसके बाद उन्हीं लोगों ने, अब कैसे हुआ ये यहाँ एक स्टाफ, यहाँ पे मैं एक चीज को रोक रहा हूँ कि ये हुआ, ये लोग पकड़े गए। अब जब ये लोग पकड़े गए जिस वक्त आपने सुना होगा कि आलमी शूरा पाकिस्तान के अंदर बनी है जी, तो और जिसमें कुछ इंडिया के साथी हैं, कुछ पाकिस्तान के हैं, कुछ बांग्लादेश के हैं। ठीक है जी, लेकिन जो हजरात हमारे बड़े हजरात थे, मौलाना खान साहब और मुफ्ती जनाबदीन साहब और मौलाना जितने इंडिया के बड़े हजरात थे, इन्होंने जब मौलाना हजरत जी के फौत होने के बाद 11 आदमी की शूरा बनाई थी, जिसमें से सारे फौत हो गए और मौलाना जुबैर साहब, मौलाना साहब और हाजी अब्दुल वहाब साहब ये 3 रह गए। तो फिर मौलाना जुबैर साहब भी मतलब फौत रहमतुल्लाह जब फौत हो गए तो उसके बाद इन्होंने ये 2 रह गए, एक मौलाना साहब रह गए, एक हाजी अब्दुल वहाब साहब रह गए। अब जब ये शूरा बनी है तो बनने के लिए उस वक्त जब ये शूरा बनी थी मौलाना अहमद हसन रहमतुल्लाह फौत होने के बाद तो 3 दिन ये आजाद बैठे थे कमरा बंद करके। उसके बाद तय किया था कि शूरा से काम चलेगा, कोई अमीर नहीं होगा, शूरा से काम चलेगा। और ये 11 साथी 11 पर ये साथी जो है ये मकसद है पूरे आलमी मसले मदार होंगे, पाकिस्तान के भी थे, इंडिया के भी थे और बांग्लादेश के भी थे। तो ये चीज तय हो। उसके बाद सारे फौत होते गए आखिर में 2 रह गए, एक हाजी अब्दुल वहाब साहब और एक मौलवी साहब। ठीक है, अब हाजी अब्दुल वहाब साहब को अब बहुत ज्यादा आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा आपको सबूत मिल जाएंगे कि पिछले 10 साल से हाजी अब्दुल वहाब साहब कैद में हैं, उन लोगों के जो लोग पकड़े गए थे अमेरिकन और यहूद नसारा के लिए काम करने में। ठीक है जी, अब इसके जैसे आप कहेंगे, जितने आप सबूत कहेंगे हम इंशाल्लाह आप तक पहुंचा देंगे। जैसे कहेंगे आप मुतमईन हो जाएंगे, हाँ भाई ये बात ठीक है। बड़ों से मतलब छोटे नहीं, पाकिस्तान की सूरत से और इंग्लैंड पाकिस्तान बड़े बड़ों से आपको 80-90% पाकिस्तानी की तबलीगों से पता चल जाए कि हाँ ऐसा कह दें। और 2-3 साल पहले उनको जहर भी दिया गया था, जिसके लिए वो 1 साल तकरीबन 1-1.5 महीना अस्पताल में रहे। और ये वही लोग हैं जो उस वक्त पकड़े गए थे। अच्छा, पाकिस्तान के जो बंदे शूरा में डाले गए वो आलमी शूरा, जिसकी वजह से ये कहते हैं कि उसको भी इसमें डालें, ये जो है ये शूरा बनाए, ये आलमी शूरा बनाए। उसमें 3 वो आदमी हैं जो उस वक्त ये जो नसारा के लिए काम करते हुए पकड़े गए थे। एक मौलवी जलाल साहब है, मौलवी अब्दुल रहमान साहब हैं, ठीक है जी, और मौलवी अमन बटलर साहब हैं, ये उनके साथियों से जी। अब जी सबाबी के हैं जी, ठीक है जी, जी पाकिस्तानी। ये 3 साथी पाकिस्तान के वो हैं जो पकड़े गए थे अमन के लिए काम करते हुए। अब कैसे पाकिस्तान अब जब ये शूरा बनी है
तो न उसमें हाजी अब्दुल वहाब साहब बैठे, न मौलाना साहब बैठे, न पाकिस्तान की शूरा बैठी, न बांग्लादेश की सारी शूरा बैठी, और इन्होंने उठा के खुद ही बना दिए कि ये आदमी हैं, ये आदमी इनको आदमी शूरा में ले आए, और हाजी साहब तो क्यों क्या जाए जी आप साइन कर दें, या उनको इतना प्रेशराइज किया जी आप इसको दस्तखत कर दें। और उसके बाद मौलाना साहब के पास जब ले आए तो उनका भाई कोई मसले में बैठे ही नहीं है, तो ये कैसे बना दी, किसने बना दी, जिसमें न हाजी साहब बैठे हो, न पाकिस्तान की शूरा बैठी है, न मौलाना साहब, न बांग्लादेश की शूरा बैठी है, तो ये कैसे बन गई जमात, ये कैसे बन गया, ये आलमी जमात कैसे बन गई। जब पहले जमात आज जब इमाम बहुत हुए थे तो उस वक्त तो सारे बुजुर्ग आके इंडिया में बैठ गए थे और 3 दिन मुसलसल बैठे रहे थे 10-15, और यहाँ कोई भी नहीं बैठा, और आके कहते हैं साइन कर दो शूरा बन गई, साइन कर दो शूरा कर। तो कुमार साहब को पता था कि ये वो 3 आदमी ने डाल दिए जो पहले आज से 15-20 साल पहले यहूद नसारा के काम करते हुए पकड़े गए हैं, इसलिए उन्होंने कहने भाई ये कैसे बना दी। लेकिन उस पब्लिश में तो वहाँ सारे जमीन साहब भी थे जी, सारे जमीन साहब, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मेरा कितना उनके साथ ताल्लुक है, शायद ही किसी का हो, सबसे पहले मैं उनको घंटा समझाता रहा कि खुदा के लिए इनके साथ न बैठे, आप न बैठे, उनके कमरे में न बैठे, नहीं मेरी मानी, नहीं हमारी मानी। फिर जब पकड़े गए तो मैंने बताया कि मौलवी साहब ये शूरा वालों ने पकड़ा है, अब अल्लाह के लिए इनको आप इनके साथ न जोड़े, न इनके साथ बैठे। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने जाके, मैंने आपको बताया मसीह जमान को जाके बता दिया, जो उनका मेन सर करना था कि तुम्हारे ऊपर ऐसे पकड़े गए, अपने आप को संभालो, बचाओ। क्योंकि वो मशरे के अंदर मसीह जमान मुस्तकिल कहता रहता था, हाजी साहब आप अपना को बदल बनाए, अपना को बदल बनाए, उमर जमीन को अपना बदल बनाए, और हाजी साहब इसको नहीं मानते। इसलिए इस लाइन में उन्होंने हाजी से उन्होंने मोहता जमील साहब को करीब किया, ठीक है जी, और मोहता जमील साहब को इस्तेमाल किया। हालांकि मैं मोहता जमील साहब को जब इन लोगों ने निकाला था तो मैंने मक्के के अंदर 2-3 घंटे लगा कर उनको मेहनत करके मैं लेके आया था रायवेल के अंदर, और मुकीम बनवाया था और फिर मशरे में बिठवाया था, तो फिर इन लोगों ने उनको निकाल दिया। तो मसला है कि मोहता जमील साहब इस्तेमाल हो गए हैं। अब ये मैं नहीं कहता कि मतलब ये उनके काम, लेकिन ये इस्तेमाल हो गए हैं। और मैंने जब कहा था रायवेल आ जाओ तो मुझे कहते हैं कहने अफसर मैं आ तो जाऊँ, अगर ये मुझे मार मार के निकाल देंगे तो मैं क्या करूंगा वहाँ। क्योंकि फिर इन्हीं लोगों ने जो तालिब इल्मों को खरीदा और जो उलमा को रायवेल पर खरीदा और जो ये आदमी के शूरा में डाले, इन्होंने कम अज कम 70-80 पाकिस्तान के शूरा वाले मुकीमीन और असासी चेले वालों को रायवेल से पिछले 12-13 साल से मार मार के निकाल दिया है। ये सारे पेपर आपके पास आएंगे तो फिर आप जब, मैं इसलिए मोटा मोटा इसलिए बता रहा हूँ कि फिर जो है मुझसे आपकी ज्यादा तफसील में इसलिए नहीं कहूँगा, मोटा मोटा बताऊंगा, तफसील आपके पास सारे पेपरों में आती जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, फिर क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ, एक तो ये मसला। दूसरा आपने सुना था कि पाकिस्तान के 95% रायवेल के पड़े हुए उलमा ने तकरीबन 5 लाख, यानी ये 5000 उलमा ने जो रायवेल की चाकों के उस्ताद है, या रायवेल के पड़े हुए हैं 5000 उलमा ने तकरीबन 3-4 लाख हाजियों से 3 खरब रुपया ले लिया मुसाफत के नाम पे। आपने सुनी तो होगी ये चीज, रोज अखबारों में आ रहा था, टीवी में आ रहा था, आपने ये तो सुनी होगी ना। नहीं, हमारे वहाँ ये खबर नहीं है। ये मैं आपको पेपर भेजता हूँ, अखबारों की अखबारें, और कितने उसमें से जेलों में पड़े हैं, वो सारे 95% लोग इस्तेमाल हुए हैं। मेरा ख्याल में मेरा बैलेंस खत्म हो रहा है, मैं आपको फिर इंशाल्लाह मैं फिर आपको लिंक करता हूँ जरा, ठीक है। माफ करें मैं आपको तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन मेरे नजदीक आपके साथ सही चीज आनी जरूरी है। जी बेहतर है, मैं मिला करूँगा। बहुत अल्लाह आपको खैर, बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन।